Payal will tell us something about what are the auxiliaries to trade and what are the hindrances they remove. This is for record. The auxiliaries to trade are transport. It hinders the problem of place, and then the second auxiliary is communication. It hinders the problem of communication. Then advertising, it also hinders the information, hinders. And then we have other one is insurance. It hinders the problem of risk. Then we have the money, creditors and money and finance, which hinders the problem of our financial problem. Yeah, it not hinders, it removes the hindrance of. These are the different hindrances. Hindrance of place. अभी ये कम्युनिकेशन हो रहा है जो हमारा ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन जो हो रहा है थ्रू जूम, इससे हमारी कौन सी हाइंड्रेंस दूर हो रही है? हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस. Hindrance of place is being removed. आप वहां हैं, हम यहां पर हैं. हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमें नहीं मिलती अगर ये ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अभी नहीं होती हमारे पास. So it means to say these auxiliaries to trade are helpful in removing these hindrances and improving the trade and commerce, improving the trade and commerce, facilitating in the smooth functioning of trade and commerce. All those again, Slokras, Sarthak, Aswinder and Anjali, turn on your cameras. Aswinder, Slokras and Sarthak, keep your cameras on and sit properly. Slokraj. You are taking class. Sarthak Dua. Today we will continue with business risk, which is the last topic of the chapter. Last topic of the chapter, business risk and causes of business risk, types of business risk. Causes of business risk and types of business risk. These are the three last topics of the chapter 1. Business risk. What is business risk? Business risk means uncertainty of profit, because in business it is not certain, it is not clear what will be the profit in the next year or in the coming months. What will happen to business? There is no certainty of it. Therefore it is known as risk. More risk, more profit. Lesser risk, lesser profits. जहां पर बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, उनको प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है. एंड इफ यू डोंट टेक रिस्क्स इन बिजनेस, योर प्रॉफिट मार्जिन्स विल डिक्रीज. एंड दिस अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, वेयर यू आर नॉट sure about anything, market conditions, you are not sure, you are not also sure about what's going to happen next. अभी अचानक जो है सब बाजार बंद हो गया है, लॉकडाउन लग गया है एक तरीके से. बिजनेसमैन, उसके लिए तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, बिकॉज ही, जब मार्केट नहीं खुलेगी, हाउ ही विल सर्वाइव. उसका बिजनेस जो है काफी घाटे में चले जाएगा, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर हिम. देयरफॉर ये जो अनसर्टेनिटीज है ऑफ मार्केट, द डिफरेंट फैक्टर्स, कभी हड़ताल हो गई, कभी लॉकडाउन हो गया है, कभी जो है कर्फ्यू लग गया है, कभी जो है कोई जो है कहीं कहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो उपद्रवी होते हैं, जो जाके मार्केट वगैरह बंद करा देते हैं, या फिर कभी जो है गवर्नमेंट के कोई
नई पॉलिसीज आ जाती हैं, जीएसटी आ गया था, टैक्स रेट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, कस्टमर्स की डिमांड्स दे आर ऑलवेज वेरिंग, दे आर ऑलवेज चेंजिंग, तो वहां पर भी बहुत फर्क आ जाता है. सो ऑल दीज रिस्क्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट हेडिंग्स. सबसे पहले नेचर ऑफ रिस्क. व्हाट इज बिजनेस रिस्क? आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस रिस्क. अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस रिस्क. दिस मच इज सफिशिएंट. फिर आप लिखेंगे what do you mean by what are the features of business risk. Number one, risk is due to uncertainties, because everything in life is uncertain. Cannot forecast, cannot predict anything about future. तो इसलिए रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से है. नंबर टू, रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. जैसे कि मैंने बताया आपको, बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ही ना हो. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप कहें कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा. इट इज नॉट पॉसिबल. रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क से तो पार पाना ही होगा, आपको उसके लिए उपाय करने ही होंगे, तभी आप वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का सहारा लेते हैं. रिस्क depends on nature and scale of business. The risk in business depend upon the nature of business. अब कुछ बिजनेस है उसमें कम रिस्क है, कुछ बिजनेस है उनमें ज्यादा रिस्क है. एग्जांपल बताइए सलोमी, आपको क्या लगता है कौन से बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा और कौन से में कम? कोई भी दो को कंपेयर कीजिए. सलोमी, अश्वेंदर, कंपेयर टू बिजनेस एंड टेल मी किसमें ज्यादा रिस्क होगा और किसमें कम. अश्वेंदर, any two business you can take example. सुनाई दे रहा है तुम्हें अश्विंदर? यस सर. हाँ तो बोलो कुछ, कोई भी एग्जांपल दो बिजनेस. अपने चारों तरफ आप इतने टाइप ऑफ बिजनेस देखते हैं, कौन से बिजनेस में आपको लगता है ज्यादा रिस्क है और किसमें कम है? नो आइडिया. अगली प्रियदर्शनी. Sir, risk of shopkeeper is lesser than the risk of a car manufacturer. कार मैन्युफैक्चरर मतलब आप कहना चाह रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिस्क ज्यादा है. और शॉपकीपर, कौन सा शॉपकीपर? Who any shopkeeper who is selling daily stationery items or anything related to that. या डेली नीड्स और बेसिक नीड्स के आइटम बेचने वाले को लेस रिस्क है बिजनेस में इन कंपैरिजन टू दोज आइटम्स जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो आपके स्टेटस को शो करने वाले आइटम्स हैं. उसमें आदमी का टेस्ट जो है जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, और जो डेली बेसिक नीड्स के आइटम है उनको तो खरीदना आदमी की मजबूरी भी है, बिकॉज दे आर विदाउट दैट उसका काम नहीं चलेगा. गुड एग्जाम्पल. आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी दो बिजनेस, चार बिजनेस कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें जो है बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर, एक सुनार है, उसके बिजनेस में रिस्क जो है कम है. नॉर्मली द वैल्यू इंक्रीजेस, नॉर्मली, रेयरली द वैल्यू गोज डाउन. और जो छोटा बिजनेस है कोई और जो एक बड़ा बिजनेस है उनमें भी डिफरेंस होगा बिजनेस रिस्क में. एक छोटी सी दुकान और एक बड़ा मॉल, जब मॉल को नुकसान होगा तो शायद लाखों करोड़ों में होगा. एक छोटी सी दुकान में कुछ नुकसान होगा तो 10, 20, 50 हजार रुपए का होगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज एंड स्केल. ऑल्सो रिस्क इज द रिवॉर्ड. रिस्क इज टेकन फॉर द रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स प्रॉफिट. Now next topic is causes.
causes of business risk, natural cause, economic cause, human cause, technological, जो आपका एक्सटर्नल में आ जाएंगे, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, उसमें आपका कस्टमर के प्रीफरेंसेस हो गए, टेस्ट ऑफ द कस्टमर, डिमांड ऑफ कस्टमर चेंज होती रहती है। नेचुरल कॉजेज में आपको पता ही है, कभी सुनामी आ जा रही है, कभी बहुत बारिश हो जा रही है, कभी जो है बारिश नहीं हो रही है। ऑल दीज विल कम अंडर नेचुरल। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, उससे लाइफ और बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इकोनॉमिक कॉजेस, चेंज इन द प्राइस, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन रेपो रेट, मार्केट कंडीशंस, उसकी वजह से जो बिजनेस को नुकसान होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक कॉज। ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन बीइंग्स, आपके यहाँ कोई अकाउंटेंट कोई धोखाधड़ी कर लेता है, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कर देता है, कुछ पैसे लेके भाग जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है, ये सारे आपके ह्यूमन कॉजेस हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके सारे टेक्नोलॉजिकल, मार्केट कंडीशंस, ये सारे आ जाएंगे आपके। दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, डिफरेंट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। नॉट सो डिफिकल्ट, ये आपने अपने चारों तरफ देखे ही हैं इन डिफरेंट टाइम्स, हाउ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय दीज टाइप ऑफ कॉजेज। एग्जाम्पल भी साथ साथ उनके नोट करते जाइए। Then there are types of business risk. Types. In the types of business risk, number one is speculative risk. Number one is speculative risk. Speculative risk, pure risk, insurable risk, and uninsurable risk. These are the four types of risk. Four types of risk. Number one, speculative risks are those risks in which there is a possibility of profit as well as loss. उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। दिस टाइप ऑफ रिस्क कि अगर रेट नहीं बढ़े तो फायदा होगा बिकॉज हमने कम रेट पे खरीदा है कोई आइटम, और अगर रेट बढ़ जाएंगे उसके तो हमें नुकसान हो जाएगा। मतलब कॉस्ट, इसकी रॉ मटेरियल की बात हो रही है। रॉ मटेरियल का रेट नहीं बढ़ेगा अगर, तो हम उसी तरीके से प्रोडक्शन करते रहेंगे और हमारी सेल्स चलती रहेगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा तो हम, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स जो है हमें फेल कर देंगे उसमें,
तो हमारे को नुकसान हो सकता है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क, कई लोग जो है बैटिंग करते हैं, कई लोग जो है कहीं पर जो है आप देखते होंगे गेम्स वगैरह में बैटिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नंबर 2, प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, लेकिन वो तभी होगा जब कोई इवेंट होगी, अदरवाइज देयर इज नो लॉस। दीज आर कॉल्ड प्योर रिस्क। अगर एक्सीडेंट हुआ तभी जो है कार को किसी तरह का नुकसान होगा या डैमेज होगा। अगर चोरी हुई तभी जो है बिजनेस में लॉस हो रहा है, अदरवाइज लॉस नहीं होगा। इफ देयर इज द अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑफ थेफ्ट, then there will be loss to the business, otherwise there will be no loss. तो कोई इवेंट्स पे डिपेंड करता है, अर्थक्वेक आएगा तो लॉस होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होगा। दे आर कॉल्ड प्योर रिस्क। देन देयर आर इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क जिनको आप इंश्योर कर सकते हैं, जिनका इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस लगभग सभी चीज का करा सकते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन एरर्स का। किसी की ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कौन कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। ह्यूमन एरर्स का कोई इंश्योरेंस नहीं है। दे आर कॉल्ड अनइंश्योरेबल रिस्क, वेयर एज द रिस्क विच कैन बी कवर्ड, रिस्क बाय फायर, रिस्क बाय थेफ्ट, ये सारे के सारे आपके कवर्ड होते हैं, इनको आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। आग लग जाती है दुकान में, सामान जल जाता है, जो नुकसान होगा उसका इंश्योरेंस होता है और उसका पैसा मिलता है, क्लेम मिलता है। दे आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। दे आर नोन एज इंश्योरेबल रिस्क। Slok Raj, you have book? Yes, sir. Asminder, do you have book? No, sir. So are you writing? What are the points being explained? Are you writing whatever is being explained on the board? Yes, sir. Keep updating yourself. Try to arrange for the books. Books are not changed. They are of the previous year students only. You can ask them and you can arrange books from them. No book is changed. Okay, sir. Because without book, it will be very difficult to just understand what is being taught, how it is being done. It would be good if you have the book and try to be regular in the class. You are not regular. Okay, sir. Try to be regular and also insist your classmates to be regular in the class, because whatever is taught here in the class is not going to be repeated again. Okay, sir. We will continue with the syllabus. Chapter in both accounts and business is already over now. Tomorrow we will start the second chapter in business as well as accounts. Already started second chapter. If there are some doubts, concepts are not clear, you can ask whenever the class is there. Okay? Anything anybody want to ask in the chapter? You are free to ask. Priyadarshini, Anjali, Payal, Salomi, Sarthak, anything you want to ask, you can ask. Prepare the notes. Today I may send you the first chapter of both the books, accounts and business. आप चाहें तो उसमें से भी help लेके लिख सकते हैं. Okay? I will send you images. I don't have the PDF file of that. I will click and I will send you. And you can prepare notes from that. It is very necessary that simultaneously you prepare your notes and keep your work updated. Otherwise, afterwards it would be too much for you. After maybe 2 weeks in accounts, numericals will start, then you will enjoy more. अभी तो theory हो रही है. It is little new for you. तो उसमें आपको जो है may not be very much interesting to you, but मजा आएगा आपको अभी जब आगे numericals and all will start and much
Interested topics will be there, concepts will be there. And chapter 2 से अब आपका स्टार्ट हो गया है. अब आपके नए अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे आप अकाउंट में, फिर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आप, और फिर आपको अच्छा लगने लगेगा. Business, as I told you, is a theoretical subject, purely theoretical. You have to only listen to the concepts well, topics well, correlate them with your surrounding. ये सारे जो टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, एंड बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज एंड टाइप्स, ये सब आप अपने चारों तरफ देखते हैं. दे आर नॉट न्यू. ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी न्यू टू यू. You are aware of them. You should be aware of them. You are in class 11th. Try to improve the standard of your English so that you understand well what is being taught and what is being explained. Use your own language to write the notes in your notebook. And if there is any problem, feel free to ask me your doubts and queries. Okay? Take care of yourself. Stay at home. Come back tomorrow. Till then, goodbye and God bless all of you.